Assalamu alaikum. It's time to greet you with the greatest of all greetings, greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And we are back with this all important cricket match, Kashmir Cup, presented by BCF for year 2022, first edition of Kashmir Cup, and we are underway with the first semi-final match of Kashmir Cup Baramulla, and it is Northern Reds taking on Sultan Warriors Baramulla. Toss falling into the kitty of Northern Reds, and their captain opting to bowl first and asking Sultan Warriors Baramulla to bat first. Out come the two openers, Munir Bhatt joined by Adil Rishi, and it's going to be Wasim to operate with the ball for Northern Reds in this number one. It's time to again welcome each and everyone across the globe and even from entire nook and corner of the valley. Join us in numbers and catch us live from Jalam Sports Stadium, Baramulla, and Malik Zulfi, walaikum salam. Then we got Ijaz Ahmed, we got Lone Amir and Ames Dar, one of the proud and prolific weaver of Jksportstime, Ames Dar, thank you much. And we got Majid Baba, walaikum salam brother. Now it comes down to Sultan Warriors, the two openers out to the centre, out to the batting strip, and to the turf of Baramulla. It is Adil Rishi, the prolific cricketer of Valley, and Valley has ever produced a wonderful, and he is a diamond in terms of a prolific prospect as a cricketer. Imazda, thank you Majid Baba, Tausif Kashmiri, and Ishfaq, and then Taid Masoodi, walaikum salam brother. P. Zishan, walaikum salam to entire fan base. Ball one of semi-final match is here. Ball one, it's going to be Wasim to Adil Rishi, and straight away that moisture of the track which is visible to the naked eye. Ball skidded up the surface straight away, and it asking batsmen to give a lot of time to that run, and batter on that occasion scaring himself up and going right behind it, keeps it out towards the cover point for no run. It's a dot ball, none for none in over number one. Adil Rishi is yet to open his account, and Munir Bhatt is yet to get on strike. And we got Mir Zui, we got Mujtaba Ali, we got Bhatt Farhan, and Tanha Ahmed, then Pir Zishan and others. Thank you. It's none for none. Ball number two goes and bows. Oh, what a delivery on that occasion. Not sure, but he will feel some sort of relief out there at the centre. This was the second ball to some extent. He was unable to read it, and he was unable to operate, but luckily ball kissing the inner edge of the blade onto the onside for no run. It's none for none in number one. I got my colleague next to me, Mr. Sheikh Nazir in Hindi, and Ames Dar, thank you for allow. Then we got Mushtaq Miraj, pulling that turn in the air, and it goes straight down towards the mid-wicket fielder, gives the chase. Will he be able to flick that back in? And he managed to get to the ball in time, picks it up, sends us in the return. And Adil Rishi is off the mark with that single. It's one for none. Sultan Warriors in number one. And I would definitely love to welcome my colleague next to me in the com box, Mr. Sheikh Nazir in Hindi. It's over to Nazir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला बीसीएफ कश्मीर कप वर्ष 2022 के अंतर्गत, और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर इसमें नॉर्दर्न रेड्स के विरुद्ध बल्लेबाजी करते हैं। जहांगीर लोन इस मुकाबले में खेल रहे हैं। हालांकि वसीम गेंदबाजी के मोर्चे पे अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई तिरछा बल्ला जरूर किया मुनीर भट्ट ने, खेला उस और खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर 1 रन सुल्तान वॉरियर्स का। हालांकि आज वे टॉस हारे थे, लेकिन आमंत्रित किया गया नॉर्दर्न रेड्स द्वारा, जो कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और निश्चित तौर पर कारण की अगर बात करें, नमी विकेट पे जो शुरुआती क्षणों में दिखने को मिल रही है, और ऐसे में शायद गेंद स्किड होकर के भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जहन में रखते हुए आज उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। यूनुस नबी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोन बसारत, वालेकुम अस्सलाम। अपना प्यार और विचार देने के लिए वसीम चले। ऑप्शन से बाहर नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला उड़ाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 1 रन, 5 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की। वसीम के कंधों पे इस समय गेंदबाजी का दायित्व, और अच्छी गेंदबाजी शुरुआती क्षणों में, क्योंकि शुरुआती क्षणों से ही एक दबाव बनाना चाहते हैं। और वहां पर अंपायर शेख फहीम लगातार इस मुकाबले में अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। मूसा मुदस्सिर उनका सहयोग कर रहे हैं, स्क्वायर लेग पे खड़े हैं दूसरे अंपायर। एक बेहतरीन और आकर्षक सेमीफाइनल मुकाबला इस समय बीच मैदान में। ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप
से बाहर, धीमी गति की गेंद हवा में दोनों हाथ लहराए वहां पर शेख फहीम ने, वाइड का इशारा, अतिक का खाता खुला, कुल योग 2 बगैर नुकसान के। मुसव्वर महराज, सलीम, सकलैन मुश्ताक के साथ अशरफ अहमद और पीर ज़ीशान हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द आप तक का प्लेइंग 11 की सूचना पहुंचा दी जाएगी, बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूले। एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक, निर्णायक पहला सेमीफाइनल मुकाबला जहलम स्टेडियम बारामूला से सीधा प्रसारण लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। वसीम है गेंदबाज, मुनीर भट्ट के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिली, करारा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पहला लगा जस्ट बुखारा चौका और मुनीर भट्ट ने अपना खाता खोला। 4 उनका व्यक्तिगत योग, कुल योग 6 पहले ओवर की समाप्ति के बाद। मुनीर भट्ट और आदिल रेशी ये दिग्गज जोड़ी इस समय सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से प्रारंभ कर चुकी है। मुनीर भट्ट 4-3 गेंदों से, आदिल रेशी 1-3 गेंदों से, 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। सरताज हमारे साथ लोलाब से बने हुए हैं, लोन मंजूर, शौकत, नदीम किचलू और शेख अतर के साथ लाउली पर्सन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मुनीर भट्ट और आदिल रेशी प्रारंभ कर चुके हैं हल्की हवा मैदान पे, लेकिन इस समय बेहतरीन वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल, आकाश खिला हुआ, धूप अच्छी, और ऐसे में धीरे धीरे से दर्शक मैदान में अपना स्थान लेने के लिए पहुंचते हुए, और कहना चाहिए एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, हालांकि शुरुआती क्षण है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, क्रिकेट के समर्थक दीवाने लगातार इस मुकाबले में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल योग के समय 6 रन बगैर नुकसान के। मुनीर भट्ट और आदिल रेशी की जोड़ी समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है, हालांकि पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो ऐसे में निर्धारित 20 ओवर का यह सेमीफाइनल मुकाबला, BCF कश्मीर सफल प्रतियोगिता का आयोजन, पहली बार नॉर्थ क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन, टर्फ पे ये मुकाबले। और कुल मिलाकर बारामूला क्रिकेट फोरम की अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन जो उन्होंने संकल्प लिया है इस क्षेत्र में यहाँ के युवा क्रिकेटर्स के लिए, और मैं समझता हूँ न सिर्फ यहाँ के कार्यकर्ता सदस्य बल्कि पूरी BCF की फैमिली को सराहनीय जाता है इस प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन करके हमारे क्रिकेटर्स को एक बेहतरीन अवसर मिलता हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आके मीर मलिक, शाहिद खान, रियाज, शाहिद बशीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। उस चोट से पहली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद, और वहां पर कहना चाहिए एक आसान सा कैच छूटता हुआ, एक जीवनदान आदिल रेशी जो कि इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लपेट करके ऑन साइड में मारा था। उस ओर खिलाड़ी थे 30 गज के घेरे के अंदर, सीधे गेंद उनके हाथ में पहुंची, लेकिन हाथ में आने के बाद छिटकी, एक जीवनदान। कहना चाहिए शुरुआती क्षणों में अगर इस प्रकार के कैच को लपक लेते तो परिस्थितियां कुछ और होती। लाला रियाज, चाहत बिलाल, बेग फयाज और मोमिन साहब भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। संघर्षपूर्ण, आकर्षक, निर्णायक मुकाबला। आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, सेंड स्टार के बटन को दबाना ना भूलिएगा। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 6 रन इस बार ऑफ स्टंप पर, बढ़िया गेंद निकाला उसको, उस ओर खिलाड़ी है तैनात, गेंद उन्होंने फेल तो कर ली लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए 1 रन लेने से। 1 रन और 7 रन। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, आपको याद होगा, टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर नॉर्दर्न रेड्स की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए मीर उमर हमारे साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक शाहिद, मलिक तारक के साथ इट्स फॉलिस क्रिकेट टाइटन्स और डार बरकत भी हमारे साथ बने हैं। ख्वाजा हुसैन के साथ 7 रन बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर एक बार फिर इस ओवर में अगली बार, इस बार लेग स्टंप पर अंतिम समय में मुनीर भट्ट ने हल्के से दिशा दे दी, कोई मौका नहीं, खाली क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका लगता हुआ। आरिफ भट्ट वालेकुम अस्सलाम। वानी जाहिद भी हमारे साथ बने हुए, एजाज अहमद लोन के साथ, और इससे चौके के साथ स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 11 पे पहुंच चुका है बगैर नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी इस समय दोनों छोर से करनी होगी। शुरुआती क्षणों में एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी, प्रभावशाली गेंदबाजी करनी होगी यदि शुरुआती क्षणों में कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते हैं बल्लेबाजों पर। मोहम्मद अशरफ, CH फिरदौस, शाहिद बशीर और शाहिद निसार भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद साहब। ये गेंद ऑप्शन से बाहर लपेटने की कोशिश, हालांकि एक कदम आगे निकाल करके उसको कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे मुनीर भट्ट, सफलता मिली नहीं, गेंद सीधे छकाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में विकेट कीपर ने बाकी कार्य किया। 1.4 11 बगैर नुकसान के। नदीम किचलू हमारे साथ बने हुए हैं।
शेख समीर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। सुहेल अब्बास मीर तनवीर के साथ शेख फिरदौस भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीर भट्ट है सामने, सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में अगली बार का आलिम है गेंदबाज। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट मुनीर भट्ट के लिए। इस बार फिर ऑफ स्टंप पर खेला जरूर, हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं उस ओवर खिलाड़ी। जब तक वे फील्ड कर लेते पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन बटोरने का आदिल रेशी को इसमें स्ट्राइक मिलती हुई। 12 बगैर नुकसान के आखिरी गेंद का आना बाकी, दूसरा ओवर मात्र प्रगति पर। शुरुआती क्षण एक आत्मविश्वास संयम के साथ शुरुआती क्षण में बल्लेबाजी करनी होगी सुल्तान वॉरियर्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के। सैमी हमारे साथ बने हुए हैं चौधरी फिरदौस के साथ, ताहिर गनई और इरशाद अहमद मीर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर ये गेंद इस बार अच्छी गेंद अपेक्षा से ज्यादा उछली, हालांकि बल्ला जरूर चलाया था वहां पर आदिल रेशी ने। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अब जाकर के दोहराते हुए कि किस प्रकार से स्ट्रोक खेलना चाहिए था, लेकिन गेंद तब तक विराम कर चुकी थी। विकेट कीपर के दस्ताने में ओवर हुआ पूरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 बगैर नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला पहले निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में बारामूला क्रिकेट फोरम द्वारा आयोजित सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 पहला सत्र इस वर्ष का इस समय अंतिम चरण में। मोहम्मद अयूब हमारे साथ बने हुए हैं, शेख साहिल खान के साथ सईद इशफाक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जहांगीर लोन इस मुकाबले में खेल रहे हैं। आदिल रेशी, मुनीर भट्ट, जोहर जोलो, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी महजूर सोफी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सितारों से सजी हुई टीम। और 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 बगैर नुकसान के आदिल रेशी 2 6 गेंदों से, मुनीर भट्ट 9 6 गेंदों से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, मुनीर भट्ट लगातार प्रहार कर रहे हैं। वसीम ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की थी नॉर्दर्न रेड की ओर से, अपने कोटे का दूसरा और पारे का तीसरा ओवर लेकर के तैयार इस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए हैं। इम्सडार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल खान और आकिब भी इस मुकाबले का आनंद रहे। जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ बने रहिए हमारे साथ। एक आकर्षक विश्वसनीय पहला सेमीफाइनल मुकाबला। मुनीर भट्ट के लिए वसीम की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े लपेटा गेंद सीधे वहां पर खिलाड़ी के हाथ में, और उसके बाद छिटके मुनीर भट्ट को मिलता हुआ जीवन दान, और ओवरथ्रो के रूप में गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर संभवते। जी हां, 4 रनों के लिए। और क्या खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, पहले आदिल रेशी का कैच छोटा और अब मुनीर भट्ट का। तो इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम यदि आप टीम को देते हैं, एक कहना चाहिए कि अतिरिक्त जो जोखिम से आप टीम को लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी दिक्कत हो सकती है। कितना महंगा होगा, क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा नार्दर्न रेड्स की टीम को, यह देखने वाली बात होगी। 17 रन बगैर नुकसान के 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद, हालांकि इस बार मुनीर भट्ट ने स्ट्रोक, आदिल रेशी ने स्ट्रोक खेला था संभवतः, मुनीर भट्ट ने, क्षमा कीजिएगा, मुनीर भट्ट ने स्ट्रोक खेला था। हवाई यात्रा सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास, गेंद उनके हाथ में आने के बाद छिटके, और यह दूसरा जीवनदान दूसरे खिलाड़ी को। BBC सोइबुक बहुत बहुत धन्यवाद। पीर इरशाद हमारे साथ बने हुए डार ओवर के साथ। मुनीर भट्ट 14 7 गेंदों से और आदिल रेशी 2 6 गेंदों से। तांत्रे रिजवान, शाहिद बशीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। 17 बगैर नुकसान के 2.1 के बाद वसीम नाखुश हैं इस क्षेत्र रक्षण से, क्योंकि उनकी गेंद पर यह कैच छूटा, अन्यथा परिस्थितियां कुछ और होती। आदिल रेशी फील्ड का मुआयना करने के बाद तैयार सामना करने के लिए इस ओवर में अगली बार। इस छोर से कमेंटेटर माइक से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया उनकी गेंद, और इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे आती हुई अंतिम समय में गेंद को सीधे बल्ले से बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से रोका बगैर किसी रन के। 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 17 बगैर नुकसान के। मुनव्वर दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें, शुरुआती क्षणों में 2 जीवनदान मिल चुके हैं, पहले आदिल रेशी और इस बार वसीम की गेंद पर मुनीर भट्ट। तो एक खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, और शुरुआती क्षणों में इस बड़े मुकाबले में आप अगर इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण करते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। And catches win matches, and they put down 2 catches, and both batters were put down, be it the Adil Rishi and be it Munir Bhatt. Here goes Wasim again, and in the air again, but in no man's area, safe zone, and ball falling in that backhand area of mid-off. Another run added, 18 for the loss of no wicket. Halfway stage in over number 3. Well, as if we were talking about that sloppy field and sluggish to be precise, and lackadaisical approach shown by the fielders of Northern Red. Still beginning of a great game of cricket here at Jhelum Stadium. But yeah, of course they put down too many dollies, and both the openers were put down, and they both are still unbeaten, and they got the lifelines. Now they need to cash on, because both were given an opportunity to carry on the next ball. That's another good line, and length again hitting the right areas, but that moisture in the track is also playing its part to larger extent, and bowlers are getting some perches out of the deck, but need to hit consistently those areas where from they're able to tease the batters to larger extent. 18 for none. We are in over number 3. Ball number 5 coming up, and Mudassir writes in Hindi Nazir and English Munawwar. Thank you, Mudassir, for conveying that message. Kaksar, walaikum salam, brother.
And goes and bows to Munir Butt, and Munir Butt wanted to escape for a quick single, but saw the fielder coming on to the ball and deciding against it. And it's over number 3. We are in 18 for none after being put into bat by Northern Reds, which was a great sign. Captain winning the toss and asking Sultan Warriors to bat first, because ball is doing quite a bit because of that track, that moisture in the track. He should not be counted as top player. Abdul Qayyum writes in, how odd is this Adil Rishi, the way he plays. He plays very well, no doubt about it, but nowadays he has made his comeback, and after a long time it isn't easy to get things going. Yeah, of course, he has changed his batting stance to nowadays. He's playing with a different kind of a stance. It's 18 for none after 3 overs. When you see then Northern Reds, they would have been in solid position in this very match, but unfortunately they put down 2 catches of both the openers, and it would have been 2 down Sultan Warriors to be precise, but now it's 18 for none because of the bad field, sluggish, lackadaisical approach, imprudence in the field or on the field to be precise. Adil Rishi and Munir Butt. Adil Rishi is the captain of the team, and 1 extra. And other runs of the blade of Adil Rishi and Munir Butt. Munir 14 of 10 balls, and Adil Rishi is on to 3 of 8 balls, and it tells how ball is doing quite a lot. Not quite a bit, but quite a lot off the deck, and bowlers are getting serious purchase, but you need to stick to the basics. Yeah, bowlers did bowl well, but the fielders were unable to provide their sport, and they were unable to back the bowlers. They put down 2 of the easiest catches to, I must say. In comes bowler over number 4, ball 1, and Adil Rishi again beaten. Shot for stumping, and umpire Sheikh Fahim turned down appeal and says he's home. So no harm done, score man static, 18 for none. We got the 2 umpires for today's All Import semi-final match. We got Musa Mudassir and his colleague Sheikh Fahim. Sheikh Fahim is talented cricketer from this part of the world. 18 for none after 3 point a ball. We are in over number 4. Bowler continues to bowl. It is that's an on to the offside, goes down towards the cover point area for no run. That was a good shot, but was unable to pierce his cap on offside, and he was unable to split the 2 fielders on offside. So no run there, dot ball. Now Nazir, there is a lot of purchase in the deck, and if you hit the right areas, I believe that the way you got an opportunity, were unable to cash on, but if you tend to hit the right areas, you have enough areas to tease and annoy and irritate the batter and unsettle the batter, to be precise, Nazir. देखिए मनोवर, मैं आपकी बात से सहमत, लेकिन यहाँ पर आदिल ऋषि की अगर हम बात करें पिछले 1-2 ओवर से, हालांकि मात्र 4था ओवर प्रगति पर, लेकिन पिछले ओवर में लगातार वो अपनी जगह खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शरीर से दूर धकेलना चाहते हैं, फुटवर्क बिल्कुल भी उनका काम कर नहीं रहा है, तो मैं समझता हूँ अभी तक वो उस लय में नहीं है जिस लय के लिए जाने जाते हैं. Of course, and somebody dropped in a comment, and he was also talking about his batting stance. He has changed it, and the comment were like this, that he is in his good touch, and somebody writes in thank you Abdul Qayyum, and yeah, of course he's having that he has changed his batting stance, and the way he tends to bat nowadays, the way he's displaying his batting stance, it looks like that batter number 10 or the player at number 10 walked into the center to bat on, the way he's using his bat nowadays. In comes pacer again, and that's a good ball. Munir wanted to escape for a quick single, but denied by the fielder, and there is no run. 19 for none, and Amos Dar writes in something. Download Crick Heroes, there you can see, and thank you Amos for conveying a message. It's a great message for our proud viewers and listeners on Jksportstime, and each and everyone wants to know that playing 11. Yeah, you can go through Crick Heroes and find out. Sahil Butt, Amos Dar, Danishul Islam, and Malik Tanveer. Next ball. Ball is doing quite a lot. Shot for stumping given. Whiffs up the bails in time. Can you believe? And he looks back in disbelief. He has to walk back, and great presence of mind. What a wicket keeper. What a man behind the sticks. Wicket number 1 goes down, 19 for 1, and this man Munir Butt has to walk back. Thank you AK Tanha and others. And as the first blood is drawn, pressure was mounting, still settling deep in the crease, still feet in the air, imprudence, and isn't
isn't a great sign for a batter. This is a kind of a bizarre show. Getting out, you being stumped in such a bizarre fashion. It isn't good for a batter. And his feet is put in air, and wicketkeeper dislodging and whips off the bails in time. It is imprudence, and batter need to understand how to adapt and apply under certain circumstances when you are feeling the pressure, but that doesn't mean you will stay unconscious out there at the center. बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ और इस बार मुनीर भट्ट के साथ वही हुआ, लगातार असहजता महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रयास उन्होंने जरूर किए थे कुछ स्ट्रोक का खेलने के, लेकिन इस बार लगातार असहजता महसूस कर रहे थे और ऐसे में उनका विकेट मिलता हुआ नॉर्दर्न रेड को शुरुआती क्षणों में। तो कुल मिलाकर 19 पे पहला विकेट और आसिम बशीर क्रीज पर पहुंच चुके हैं। देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। एक बेहतरीन ऑलराउंडर, अगर बात करें आसिम बशीर की, अच्छा खासा अनुभव उनके पास, लेकिन इन परिस्थितियों में शुरुआती क्षणों में एक विकेट गंवाने के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से जबकि उनका पदार्पण हुआ है, काफी कुछ निर्भर करेगा उन पे, उनके कंधों पे दायित्व है और आज उनको उस कला का प्रयोग करना होगा उस छोर से। राइट आर्म ओवर द विकेट आसिम बशीर के लिए पहले गेंद ऑप्शन से बाहर, बेहतरीन किनारा लेते हुए और शानदार क्षेत्ररक्षण 30 गज के घेरे के अंदर, कमाल का क्षेत्ररक्षण। जितने भी प्रशंसा की जाए उतने कम साथी खिलाड़ी दाद देते हुए निश्चित तौर पर यहां पर कुछ रन बचाए, एक ही रन मिला, 20 रन एक विकेट के नुकसान पर 3.5 चौथा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले जो अनिवार्य है, इसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन पाई जाती है, वे इसमें प्रगति पर और उसका बेहतरीन प्रयोग कहना चाहिए नॉर्दर्न रेड ने अब तक किया है। मोमिन शाह हमारे साथ बने हुए हैं और सैयद एहसान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं इरफान डार के साथ। सोफी शमीम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला निर्णायक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और नॉर्दर्न रेड्स के विरुद्ध चलता हुआ ये गेंद, उस बार फिर अच्छी गेंद लेग स्टंप पर और उसको आदिल रेशी ने संभलते खेला, बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात, जब तक वे फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के पास गेंद पहुंचती, पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास केवल एक रन लेने का। एक रन के साथ ही ओवर पूरा हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 एक विकेट के नुकसान पर मुनीर भट्ट आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। जहांगीर जॉन हमारे साथ बने हुए, डार आशिक, धन्यवाद जहांगीर जॉन। बिलाल हुसैन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर उमर भी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। क्रिक हीरोज पे जाकर के आप वहां से BCF कश्मीर कप जो है वहां से आप प्लेइंग 11 दोनों टीमों का देख सकते हैं और ऐसे में रफीक राबी भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्माइल किंग के साथ इरशाद अहमद भी हमारे साथ, शारिक अहमद और पीर रसैयार इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। चौगल से बहुत बहुत धन्यवाद, वालेकुम अस्सलाम। अपना प्यार और विचार देने के लिए आप डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित कर सकते हैं। पीर सैयार के साथ अलिन जैद और जाला जावेद, वालेकुम अस्सलाम। अपना प्यार और विचार देने के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हैं। 4 ओवर 21 एक विकेट के नुकसान पर शेख फहीम और मूसा मुदस्सिर, 2 अनुभवी अंपायर इस समय आज के इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। जहलम स्टेडियम बारामूला इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ 5वां ओवर पारी का शुरू होने जा रहा है 21 एक विकेट के नुकसान पर। हाफिज ताहिर अहमद कुमार, वालेकुम अस्सलाम। वानी, नाइक इशफाक, स्माइल किंग और फहद इकबाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। शेख अथर के साथ कपवारा से बहुत बहुत धन्यवाद। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेकर के तैयार वसीम, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद हालांकि खेला सीधे बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच लिया आदिल रेशी ने, पीछे खिलाड़ी है तैनात, गेंद तो फील्ड कर ले लेकिन रन बनने की किसी भी समानों को समाप्त किया। स्कोर टिका हुआ 21 4.1 के बाद एक विकेट के नुकसान पर। आपको याद होगा आदिल रेशी और मुनीर भट्ट ने आज पारी की प्रारंभिक जोड़ी के तौर पर यहां पर पदार्पण किया था, लेकिन मुनीर भट्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 16-17 रन बना करके वापस लौटे और इसमें आसिम बशीर और आदिल रेशी की जोड़ी बीच मैदान में बनी। वसीम एक बार फिर रेशी के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद उपेक्षा से ज्यादा उछलती हुई एक कोण बनाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, अंतिम समय तक देखा वाला छोड़ा विकेट कीपर के लिए। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, अच्छी गेंदबाजी इस समय और निश्चित तौर पर शुरुआती क्षणों में बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। अब्दुल कयूम हमारे साथ बने हुए हैं, नवाबजादा, साहिल और आरडी बोहिमा, जहांगीर जॉन के साथ शेख मुस्तफा, मुनीर मुन्ना भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, अपना प्यार विचार देने के लिए समर्थन देते रहिए, सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि बेहतर से बेहतर पसंद लेकर के हम हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहें। इस ओवर में अगली बार ये गेंद रेशी के लिए, इस बार बैकफुट पर जाकर के गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, वही पास में लुढ़की अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ और अच्छा कहा जा सकता है नॉर्दर्न रेड्स के दृष्टिकोण से। आसिम बशीर एक गेंद से, आदिल रेशी 6 14 गेंदों से। ये दर्शाता है कि किस सहजता और संयम के साथ इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक विकेट जरूर गंवाया है, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल, मात्र 21-22 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। रुफुल मकबूल, डार बरकत भी हमारे साथ, सुहेल अब्बास के साथ। वसीम, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, जी हां वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 एक विकेट के नुकसान पर। नवाबजादा हमारे साथ बने हुए हैं, साहिल अली, आरजे
फजील और खान नमोल वानी शुएब के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जहांगीर जोन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर भाई, आपकी सूचना हम तक पहुंचती हुई। 23 क्षमा कीजिएगा 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 गेंदें 5वें ओवर की और रन गति पे अच्छी तरह से अंकुश लगा हुआ अगर नॉर्दर्न रेड्स की ओर से गेंदबाजों की बात की जाए। पारे नदीम भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये गेंद और बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, अंतिम समय तक देखा वाला छोड़ा विकेट कीपर के लिए। अंपायर का कोई निर्णय नहीं, हालांकि बल्लेबाज प्रतीक्षा कर रहे थे वाइड करा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रनों की गति में लगातार अंकुश, अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट गंवाने के बाद इस समय बेहतरीन नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी। बशारत बेग हमारे साथ बने हुए हैं, सईद नईम शाह, लोन टेलीकॉम और लवली सहल नदीम इस्लाम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम, अपना प्यार और विचार देने के लिए नवाबजादा लगातार हमारे साथ बने हुए। डार बिलाल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला जहलम स्टेडियम इस मुकाबले का नेतृत्व करता है। अच्छी गेंद पिछले गेंद के पुनरावे थे, पड़ने के बाद कोड बनाती हुई और ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में अच्छी गेंदबाजी और क्या बेहतरीन मूवमेंट गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है। वसीम की अगर बात करें 2.5 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, 13 रन को दे चुके हैं, वो सफलता उन्हें मिली नहीं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। मलिक सजाद, वानी बैदू, मलिक तनवीर भी, एमडी अब्बास मलिक के साथ साहिल अली भट्ट, दानिश हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद दानिश भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। नवाबजादा भी हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद फिर अच्छे गेंद नीचे रहते हुए चकाते हुए आदिल रेशी को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा हुआ, 5 ओवर की समाप्ति 22 1 विकेट के नुकसान पर। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जीशान मजीद, ओवेस लॉन और मोहम्मद यासीन शाह भी हमारे साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यासीन भाई। ओवेस लॉन के साथ उमरुल इस्लाम, आदिल राजा और मंसूर मलिक हमारे साथ आशपुरा गाजियाबाद से बने हुए हैं। नवाबजादा इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद रेगुलर व्यूवर हमारे और मोहम्मद इकबाल शेख एक और रेगुलर व्यूवर। हालांकि आसिफ अली के साथ मीर उमर एमडी हुर्रा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वाहिद अफरीदी और एलन जैद, फयाज हारून के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। नासिर भट्ट, राजा इकबाल खान और सलीम एजाज भी हमारे साथ बने हुए। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर शांत धीमा क्रिकेट। धन्यवाद मीर आकिब अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। डिजिटली आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत, पावर प्ले का आखिरी ओवर उस छोर से पहली गेंद लेकर के तैयार, सामने रहेगी आसिम बशीर के लिए गेंद। इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे आते हुए अंतिम समय में एक कदम आगे निकाला, सम्मानजनक रूप से रोका बगैर किसी रन के। धन्यवाद अहम आशू, पीर आकिब और समी का डिजिटली हमें सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी व्यूअर से निवेदन होगा, आप डिजिटली हमें सम्मानित कर सकते हैं। सदीक शेख हमारे साथ बने हुए डोडा से, नासिर गनी और शाहिर हैरोबैया, इरफान मुश्ताक, जैकलॉन इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आसिम बशीर सामना करने के लिए तैयार, 22 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर प्रगति पर ऑप्शन से बाहर एक किनारा और गेंद संभवतः वहां पर स्टैंड से टकराई और वहां पे संभवतः डेड बॉल का इशारा किया जाएगा। जी हाँ, इन परिस्थितियों में स्कोर 26 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद आदिल ऋषि 5-17 गेंदों से, आसिम बशीर 5-3 गेंदों से और नसीर बिन अब्दुल्ला बीडू भाई भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। यूनिक का साहिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बेहतरीन मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और मनोहर भाई हमारे पास थोड़ा सा समय है मुकाबले पे बातचीत करने का। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है एक सटीक और संयम के साथ, ये अलग बात है कि कुछ खराब क्षेत्र रक्षण का पता चला, शुरुआती को 2 विकेट लपक लेते तो ऐसे में परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन अभी इस वर्तमान स्थिति की बात करें, सुल्तान वॉरियर्स 26 पे 1 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस गेंद के बाद चर्चा जारी रखेंगे। अच्छी गेंद लेग स्टंप पर आसिम बशीर ने निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर। थ्रो स्टंप्स में गिलिया भी खेर दे, अपील की जा रही है रन आउट की, लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे आदिल ऋषि। 1 रन और खाते में जुड़ता 27 पे 5.3 के बाद। और इन परिस्थिति में इम्स डार हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद इम्स भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। और तवहीद जावेद नवाब कश्मीरी के साथ वाजिद भट्ट भी हमारे साथ बने हुए। तो मुनीर भट्ट आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। कुल योग 27 रन, 6 ओवर पावर प्ले का इस समय प्रगति पर 1 विकेट मिली है। और रन गति की अगर बात करें कि स्कोर बोर्ड पे 27 रन, मतलब कहना चाहिए जितनी भी प्रशंसा की जाए गेंदबाजी की उतनी कम। अलग बात है कि ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन रनों की गति में पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ। Impressive, absolutely right, and it's 27 for 1. And credit goes to Northern Reds and the bowlers. They hitting the right areas, kept bowling in that corridor of uncertainty.
and asking the batters to think more over it. Oh, chance of a run out again. Chance of a run out. And can you believe this is the second occasion in this over when run out chance gone begging? It's 29 for 1. We are in over number 6. And normally we see in power plays that teams tend to get past 40s or 50s. But today it's a different game day. It's a semi-final match. A match where pressure is really mounting and climbing, and on your nerves at this exerting lot of pressure on your nerves, this all-important cricket match, and that's quite visible to the naked eye because batters are unable to break free. 28 for 1 over number 7. India! Chance! And Asim Bashir has to walk back. Can you believe? And it's a two-paced wicket, and that deceived the batter, that deceived the right hand, and it goes up in the air and straight down to the throat of mid-off-field, who does well. Soft dismissal, and Asim Bashir has to walk back, gone for 6, and without irritating anyone, without bothering the scorers, and without irritating the opponent side. 28 for 2 in over number 6. Can you believe? And somebody writes in that pick up through. And Nawab Kashmiri, thank you, the regular viewer. And is here another one falling because of that moisture in the track earlier on. Prior to the match, we were just talking. I was talking to my colleague Mudassir there, and he told me what you want to do. I told him that we have issues with the valley-based cricketers. They're unable to stay patient out there in the center, and it won't be easy because there is a lot of moisture. It won't be easy for any batter to come in and just go for that full Monty like style. Thank you, Sheikh Izhar, for your love, Nawab Kashmiri and Talabai. And I was talking to him that as a captain, if you won the toss, you should bowl first and try to irritate and annoy. And that two-paced wicket, and the ball arrived belatedly, and Asim Bashir was early into the shot, and that two-paced wicket cost him his wicket. And we have seen the back of Asim Bashir, 28 for 2, and there comes the new batter to the centre after the fall of Asim Bashir, and we will have to wait and who's replacing Asim Bashir out to the centre. Now it's going to be testing time, and today's match will surely test the temperament, the nerves and the class they possess. And Mudassir writes in, thank you, but we'll have to wait and watch. Right hander, and Asif Khan walks to the centre. He has played 51 games, 908 under his belt, and with a strike rate of 101 and averaging 23, and that means he's quite a batter, and he's having 900 under his belt so far in this season. And now today's match will really test his temperament, how he's going to adapt and apply himself here at the centre. 28 for 2, team struggling in all sorts of trouble and bother. 28 for 2. Oh, in the air again, chance, but the ball falling in no man's area. Chance of a run out, and chance gone again bagging, but the field has been the concern for Northern Reds, to be precise, Nazir. And I would definitely love to take your point of view. In my opinion, what I believe and what they display today, it makes quite clear that image they were unable to step up to the occasion. They were unable to back their bowlers. It would have been 4 or 3. It would have been at least 3 to 4 down at this score had they plucked that catch of Adil Rishi from thin air on that occasion, which was an easy peasy chance were put down by the fielder there at Skylag. It's 29 for 2 after 6 hours. Thank you, Sheikh Azhar, again. It means quite a lot, brother. And we got Ahmed Mudassir, then we got Tausif Kashmiri and Mohsin Shah. Yeah, Jack Lone is playing, Jangir Lone is playing for Sultan Warriors Baramulla. He's in the kitty. Zolo is there in the lineup, and they got Majur Ali Sofi, Kashmir Express. And let me take you through. And they got the likes of Zaidar and others. They have enough batting to come, but the ploy being used by Northern Reds, it's quite magnificent, to be precise, and the way they're putting a lot of effort in this match in terms of bowling. Thank you, Ahmed Mudassir and Ibrahim Fayaz. 29 for 2, Nazir. Now the time has come that the two batters, Adil Rishi and Asif Khan, has to lift the morale of the guys who are back in the dugout and who are yet to walk into the centre. These two need to announce themselves and give them a clear indication that, and let's dictate terms to them that we are batting out of our skins, and if we fall short, you need to come in and just carry on that moment.
देखिए मनवर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि लगातार अगर बात करें गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी, लेकिन क्षेत्ररक्षण यहां पर चिंता का विषय रहा है नॉर्दर्न रेड्स के लिए, जिसके चलते इन परिस्थितियों में जो स्थिति वो और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल और पूरी तरह से इस समय गेंदबाजी चाहिए हुई नॉर्दर्न रेड्स की टीम चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला पे। जाहिद वार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद इसको निकाला 1 रन के लिए, सबब वहां पर 1 रन ही मिलेगा, पीछे खिलाड़ी है तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ सुल्तान वॉरियर्स 30 2 विकेट के नुकसान पर 6.1 का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 29 रन बने पावर प्ले में, 2 महत्वपूर्ण विकेट मुनीर भट्ट और आसम बशीर के रूप में अब तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने खोया और बेहतरीन निर्णय साबित हुआ वहां पर नॉर्दर्न रेड्स का पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का। नवाब कश्मीरी हमारे साथ बने हुए हैं, आदिल ऋषि 6 पे 18 गेंदों से, और इन परिस्थितियों से इस आंकड़े से आप कल्पना कर सकते हैं कि किस संयम आत्मविश्वास के साथ वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद बैक पर जाकर के लेग स्टंप पर मोड़ा उसको, ये देखते हुए कि क्षेत्र काफी खाली है, जब तक वहां से खिलाड़ी उसको फील्ड करते हैं। 1 रन फिर मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, आसिफ खान और आदिल ऋषि की जोड़ी बीच मैदान में। आदिल ऋषि का व्यक्तिगत योग 7 19 गेंदों से, आसिफ खान 2 गेंदों से। जेके स्पोर्ट्स टाइम बहुत बहुत धन्यवाद आकिब और सैमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बट नईम हमारे साथ बने हुए हैं सुल्तान वॉरियर्स 31 पे 2 6.2 के बाद। सजाद भट्ट हमारे साथ गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए हैं और देखना है इन परिस्थिति में किस प्रकार से वो यहां से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद और बार अच्छी खासी गेंद टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप की ओर बढ़ती हुई, लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 32 2 विकेट के नुकसान पर 6.2 के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम संकट की स्थिति में। आदिल ऋषि और आसिफ खान की जोड़ी इस बीच मैदान में और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। विकेट का महत्व जानते हैं और ऐसे में एक साझेदारी की आवश्यकता, क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे। ये गेंद धीमी गति की गेंद, ऑफ स्टंप पर आने का इंतजार किया, बैक पर जाकर के उसको निकाला उस ओर खिलाड़ी, जब तक वे फील्ड करते 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, केवल 1 रन से संतोष और 1 रन के साथ ही 33 पे 2 6.3 के बाद साहिल अली एहसान शाहिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। जफर मलिक, अहमद शौकत और साहिल अली के साथ जफर मलिक का भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। नवाबजादा हमारे साथ बने हुए हैं। सुल्तान वॉरियर्स 33 पे 2। ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद, हवाई रास्ता, पीछे खिलाड़ी, गेंद आसान सा कैच हाथ में और उसके बाद गेंद छिटकी। तीसरा अवसर जब एक कैच आसान सा छोटा, और कहना चाहिए क्रिकेट की भाषा में कैच छोटा तो मैच छोटा। और आज किस प्रकार से ये क्षेत्ररक्षण क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद हमारी समझ से भी परे। मनोवर, catch number 3 put down and somebody funny comment passed on by Phil there at backward of scare, and he says the Rishi put down thrice and he has given us too many opportunities, but dear gentlemen, you were unable to go about each and single one of it, and so it doesn't mean that he was struggling. Yeah, he was struggling, but that doesn't mean he doesn't possess talent, and you have been given opportunities time and again and you are unable to take catch, and this tells your immaturity is at its peak, because you put down in excess of 3 or 4 and nearly half a dozen of catches were put down on the trot, and next ball and played out towards the square of the wicket, square driven and gets another run, and with that single score propelled to 36 for 2. 7 overs done and dusted, 36 for 2 after being put into bat. Munir Bhatt 14, Adil Rishi 9 and Asim Bashir 6 so far contributions. And Ali picking up 2, Wasim yet to pick a wicket, and Sajju Bhatt, and it cost him 7 off an over so far. And Yabar Hassan Wani, then Bhatt Naeem, Sam Inayat, and Cricket Titans and others. And I think he's talking about that Mr. Consistent Akim, he isn't playing for today. He isn't playing for Sultan Warriors today, I think so, because he's having another match somewhere else today. He's playing a final match somewhere else. And we got Kafil Khan and Tausif Kashmiri and others. Poor fielding today. Not been up to the mark and putting down too many catches. And it's been well said, catches win matches. But apart from that, these two batters will definitely try and to seize that initiative. But we'll have to wait and watch. It is always a testing time here. And with the passage of time, wicket will play on a good side in the second innings, to be precise. Well, in first inning it isn't gonna get better, and it will take a lot of time to consolidate. A lot of moisture is still visible to the naked eye, and still heavy roller done earlier on today, but still there are areas of concern for the batters. The ball tends to skid quite a bit, and it is
turning both ways, and in between it is arriving lately, and that is also teasing the batters, and that is really testing their nerves, and they're unable to stay patient against each and every ball. And it's because of that. 29 for 2 after 6 overs. Is it 29? It should be 36 to be precise. Having issues with that Cricket Heroes app now. And the Sile, then we got it is Sile. Sun is on fire, don't worry. He says Sile, he believes that sun will soak in that moisture of the track. And that's why I told you, my dear colleague, that in the second half, in the second innings, it will get better. It will be playing on a good side. But this time it is really spoiling the show. And it is spoiling the Sultan Warriors batting show, and they're unable to display their correct for what they are known. And that one square up the wicket goes Rishi for no run, and straight to the fielder. There he picks it up, sends in the return. The ball is slowly being returned to the bowler, but in between it is what it is. Cricket Heroes is having issues. Well, we won't go there. We will focus on the game. Next ball. Oh, that's a good shot, quality shot, top shot. And but the fielder gets to the ball in time. Can you believe? For a while I thought it is way away from the fielder, but he covered almost 10 yards. That's a nice field on that occasion. And the score is displayed 28 after 6.3 balls, halfway stage in over number 7, and it is over number 8 to be precise. There are I don't think that it is okay now. 7 overs done and dusted. It is displaying 33. We're going to be in over number 8. And let me give you the proud sponsors. Greater now is writing in something. Is Akimir playing today? No, he isn't playing. Adil and Khan Hinan, and then Nawab Zada. And our proud sponsors: Anthem Sports India, Fashion Fista, Shining Star Power, and MHM Multi-Brand Fashion Store, Agriclan. Shot for caught behind, and umpire turned down that appeal, Musa Mudassir, and he says there is a big daylight between the bat and the ball. Quicker through the air, beat, and all ends up. It's 34 for 2 over number 8. Quality bowling up front from Northern Reds. And next ball again on money, and playing it back to the ball of Fanaran. Another dot ball, and each and every dot ball is of great importance, is in a weight and worth of a gold at this crucial juncture, or of weight and worth in a gold here. It's 34 for 2 in over number 8. Next ball, and Sile writes in something, Mir Javed and others. Next ball, oh, that's another good shot, straight down towards the backward a point boundary. Will get another run. Score moves on to 35 for 2. We are in over number 8. Last ball, sent by the bowler and played out towards the backward a point. Rishi Bilal, thank you. With that single, 8 overs done and dusted. It is 35 for the loss of 2. Nasir, Cricket was having issues time and again, but 35 after 8 overs. It isn't joke. 8 overs, only 35 at the cost of 2, and we can say that 8 overs clearly win-win situation for Northern Reds. And if we talk of, thank you Shahid Khurshid, walaikum salam, and if we talk of the other side, Sultan Warriors Baramulla, concern for their side, and it's like that agony up front, and agony, and they need to change their gears from here on to convert that agony into ecstasy. But at the moment 35 for 2 agony, and those dark clouds are largely looming on their dugout at this moment. Oh, look at that one, another teasing delivery, turning further, scaring him up, and look at the batter. He was dancing on that occasion, but nonetheless make sure that he plays it on to the onside. 36 for 2 over number 9. Next ball, Adil Rishi, the captain of Sultan Warriors, will take strike. He's gonna face Saju but goes and bows and driven handsome looking off try straight down towards the mid-off area. Will get a single, and with that single, score brought out to 37 for 2 in over number 9. Adil, Mir Javed, Dona Kiran, Sophie Tarek and others. Mir Javed with that single, score is 37 at the cost of 2. Oh, next one, good shot, and but Conway the fielder there at mid-wicket area, deepish mid-wicket to be precise, deep mid-wicket area, and just a single. And with that single, score moves on to 38 for 2. Cricket is game of glorious uncertainties, writes in Shahid Khurshid, absolutely right. 38 halfway stage in over number 9. Next ball goes and bows, punching that run up the back foot straight down towards the long off. Another run added,
39 for the loss of 2. Adil Rishi is up the strike and Asif Khan back on to strike, and here comes Nazir with the commentary for next few balls. धन्यवाद मनवर। 8.4 39 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ खान 7-10 गेंदों से, आदिल ऋषि 12-25 गेंदों से गेंदबाजी का दायित्व इस समय सज्जू भट्ट के पास। इससे पूर्व एक ओवर कर चुके हैं, दूसरा ओवर फेंकते हुए अब तक 11 रन दिए हैं, कोई सफलता उनके खाते में नहीं। आसिफ खान के लिए ये गेंद, हालांकि ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और निश्चित तौर पर जब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती, तेज दौड़, विकेट के बीच में तालमेल बेहतरीन और 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 40 2 विकेट के नुकसान पर 8.5। मीर मकसूद हमारे साथ बने हुए हैं, नवाबजादा भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। मीर मुनु कोपरा से हमारे साथ बने हुए हैं मलिक तजम्मुल और इम्सडार भी। इस बार लेग स्टंप से बाहर धीमी गति की गेंद, हालांकि लेग स्टंप की दिशा में टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर एक एंगल बनाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में, और अंपायर शेख फहीम का इशारा वाइड बॉल का। 42 पे 2 8.5 के बाद राशिद रसूल हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद सुलेमान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर फ्लाइट हिट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंतिम समय में इसको तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी थी, उस ओर खिलाड़ी थे चहलकदमी करते, 1 रन पूरा किया, ओवर हुआ समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति, 43 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 2 विकेट के नुकसान पर मुनीर भट्ट और आसिम बशीर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नाबाद छोड़ी इस समय आदिल ऋषि और आसिफ खान की। आदिल ऋषि की अगर बात करें तो अब तक 25 गेंदों से 12 रन बनाए हैं, और ऐसे में आसिफ खान ने 12 गेंदों से 10 रन और संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि विकेट की अगर बात करें तो गेंदबाजी के लिए इस समय अनुकूल विकेट, हालांकि कैच की अगर बात करें 3 कैच छोड़े, और अगर तीनों कैच, हालांकि आसान कैच क्रिकेट की भाषा में कहें लपक लिए होते तो इस समय परिस्थितियां कुछ और होती। फिलहाल क्रिकेट महान अनिश्चितों का खेल, कब अनिश्चितताएं घटेंगे ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। डार हिलाल हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद सुलेमान, बहुत बहुत धन्यवाद सुलेमान भाई। बासित वार भी हमारे साथ बने हुए हैं, माजिद बाबा इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर मकसूद भी हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ऋषि गोहर वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान वॉरियर्स 43 2 विकेट के नुकसान पर मलिक ओवैस हमारे साथ बने हुए। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, सामने है आसिफ खान। 9 ओवर समाप्त, 43 पे 2। पहली गेंद बाहरी किनारा, गेंद खाली क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए ये लगा जस्ट बुखारा चौका। काफी लंबे समय के बाद चौका देखने को मिला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से। एक चौका और 47 2 विकेट के नुकसान पर 9.1 का पहली गेंद पर स्वागत किया वहां पर गेंदबाज का। और ऐसे में मुदस्सिर हमारे साथ बने हुए साहिल के साथ बट नईम और फालिस महराज परा, सीरू सुबैर और खेडी लवर अमान खान के साथ ये गेंद बार अच्छी गेंद पर जाकर के हल्के हाथों के साथ लेग स्टंप पर मोड़ा, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। आदिल ऋषि उस ओर जा रहे हैं, लेकिन थ्रो विकेट कीपर के पास पहुंचा। आसिफ खान सुरक्षित कर इसमें पहुंच चुके थे, 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 49 पे 2। 9.2 के बाद 10वां ओवर आदि पारी समाप्त होने को है, और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के सामने इस समय कड़ी चुनौती गेंदबाजों द्वारा। नॉर्दर्न रेड्स की बात करें, क्या लाजवाब नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी, एक सही टप्पे पे समय गेंदबाजी होती हुई, सही दिशा, लंबाई, नियंत्रण के साथ, और निश्चित तौर पे उसका पूरा श्रेय उनके गेंदबाजों और उनके कप्तान को जाता हुआ। 49 पे 2। 9.2 के बाद ये गेंद इस बार फिर हल्के हाथों के साथ तिरछा बल्ला किया, 1 रन पूरा कर रहे हैं, थ्रो किया, सटीक स्टंप्स पे लगता खतरे में पड़ सकते थे, बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं आदिल ऋषि, और 2 रन और अच्छी रणनीति, सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते जानते हैं आदिल ऋषि और आसिफ खान। अनुभवी बल्लेबाज हैं कि इन परिस्थिति में जब आप बड़े स्ट्रोक्स आपके बल्ले से आ नहीं रहे हैं, विकेट थोड़ा सा धीमा खेल रहा है, तो ऐसे में इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम लेना अवश्य होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। वालेकुम अस्सलाम मंसूर अली, यावर, बासित भट्ट, अली इरफान हमारे साथ बने हुए, एहतशाम नाइक के साथ मंसूर अली, मलिक और यावर भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। 9.3 51 पे 2 ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद, हालांकि सीधे बल्ले से बैट और पैड मिलाकर रक्षात्मक रूप से रोका आसिफ खान ने। उनका व्यक्तिगत योग 18-16 गेंदों से, आदिल ऋषि 12-25 गेंदों से, और कुल योग 51 2 विकेट के नुकसान पर 9.4 ओवर की गेंदबाजी समय आशिक राथर के पास। आशिक की गेंद इस बार जगह मिली, ऑफ स्टंप से बाहर अपने आप को संतुलित करते हुए दिशा दे थे, सीधे खिलाड़ी के पास शानदार क्षेत्र रक्षण, और गेंद को उठाने के बाद सीधा स्टंप्स पे दे मारा विकेट कीपर के पास। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी 9.5। आखिरी गेंद का आना बाकी, 51 पे 2 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम संकट की स्थिति, लेकिन यहां से एक
आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ विकेट को सुरक्षित रखना होगा बल्कि रनों की गति में भी गतिशीलता देनी होगी। आखिरी गेंद लेकर के 10वें ओवर की चले आशिक, ये गेंद लेग स्टंप पर अंतिम समय में उसको हल्के हाथों से दिशा दे दी। हालांकि फाइनल की ओर गेंद जा रही है, उस ओर खिलाड़ी है, उन्हें फील्ड कर लिया, थ्रो किया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और पलट करके दूसरा रन भी पूरा कर लिया। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का निर्णय अंपायर मूसा मुदस्सिर द्वारा। 10 ओवर समाप्त, 53 2 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा। और इस समय जुनैद डार पहुंचे हैं वहां पर आदिल ऋषि और आसिफ खान के पास, ऐसे में जबकि ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। तो 10 ओवर में 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब तक का ये सत्र की अगर हम बात करें, इस पहले सत्र की बात करें जो कि आधी पारी समाप्त हो चुकी है और पहला सत्र रहा नाम गेंदबाजों के नॉर्दर्न रेड ने कमाल की गेंदबाजी की। 10 ओवर में मात्र 53 रन बने 5.03 के हिसाब से। खान जुनैद हमारे साथ, साहिल मीर और आदिल ऋषि 12-25 गेंदों से, आसिफ खान 20-18 गेंदों से। कुल मिलाकर 10 ओवर में 53। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने आज टॉस हारा था लेकिन उन्हें आमंत्रित किया गया गेंदबाजी पर ऐसी विकेट पे जहां पे मॉइस्चर साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि पिछले 1-2 दिन से वर्षा के कारण विकेट काफी गीली थी, तो ऐसे में गेंदबाजी करने का निर्णय जो लिया निश्चित तौर पे सही साबित होता हुआ। हालांकि 3 कैच अब तक छोड़े हैं नॉर्दर्न रेड की टीम ने और निश्चित तौर पर परिस्थितियां कुछ और होती है। फिलहाल 10 ओवर 53 2 विकेट के नुकसान पर अशरफ सूफी हमारे साथ बने हुए हैं, यावर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, हादी अजू भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात से हम सहमत। और आसिफ खान और आदिल ऋषि को अब यहां से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन स्कोर बोर्ड को भी गतिशीलता देनी होगी। इस समय ड्रिंक्स इंटरवल चलता हुआ, हमारे पास थोड़ा सा समय है बातचीत करने का। मनोवर 10 ओवर में 53 रन, मात्र 53 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी के 10 ओवर बचे हैं और एक निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। हालांकि आदिल ऋषि के पास वहां पर जुनैद डार भी पहुंचे हैं और कुछ साथी खिलाड़ी भी पहुंचे हैं। ये देखते हैं कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर इस मुकाबले की बात करें, 10 ओवर में 53 2 विकेट के नुकसान पर, मैं समझता हूं अब तक की जो गेंदबाजी है वो कहीं ना कहीं एक लाभजनक और सफलतापूर्वक गेंदबाजी देखने को मिली नॉर्दर्न रेड्स की ओर से। Of course, bowlers did really well, but Nazir, you have to keep one more thing in your mind, that 10th over you saw that 9 overs clearly belonged to Northern Reds, but in the 10th over you saw that runs coming, and if I take you through 4, then 2, then another 2, then again double, followed up with the last ball double, and it tells us 2 to 4 to 6 and 10 coming off an over, and now they are realizing that the time has come. We have chipped too many balls, we got our eyes in, now it is the time to really try and set the tone up for a good score. Yeah, of course, one more thing they need to keep in mind. Thank Yar Matlabi, it's like that. Manohar bhai, yeah, of course, and your greeting is conveyed to Mr. Jangir Lone. Thank you, Akun Sajid and Sail Mir. But you have to keep one more thing in your mind. Halfway stage, it's 53 for the loss of 2. The next 10 overs are going to be decisive because 8 wickets in Kitty with Adil Rishi out to the center, and alongside Adil Rishi they got Asif Khan. So you can understand that 2 big names, and they can really make an impact with the bat, and they will definitely love to flourish their innings. Yeah, 5 hooks can be the future of this match, and the 5 hooks can be seen in the final passage of 10 overs. And a launch shocker, thank you Dar Naim and Ims Dar and Tanveer Siru and others. Thank you. He's watching from Kerala. It's 53 for 2 with 10 overs to go, with 10 overs to come. Sultan Warriors Baramulla having the likes of Jangir Lone, Faisal Dar, Zayed Dar, Sheikh Junaid, Zur, Zolo, and these are the big names who are yet to come in. And Hadi Azu, thank you. There is no glory in practice, but without practice there is no glory. Of course, practice makes a man perfect. And then Dar Reis and Ghazi Imu, but Mermin and Said Ishfaq, then Ims Dar. Mr. Munawar, what about final match? About which final are you talking about? And we still have one more semi-final to come if you are talking of Kashmir Cup, and then followed up with the grand finale that will be hosted by the Sandfield by Monday next week. And some good news from MCG, only 20% of precipitation tomorrow. Hopefully we'll have a complete game.
And yes, White Me, thank you for your Akib Rana. And Akib Rana, for your love and support. Thank you each one of you for your digital token and coupon of love toward the Jksportstime that you sent in. And those who want to send in, and we welcome you. And it's time to again welcome you if you want to send in that digital token and coupon of love. Well, 10 hours to come. 60 balls remaining, 8 wickets in hand. Nazir, this is what I am trying to point it out. In my opinion, what I believe from in remaining 10 overs, it can be Sultan Warriors passage now to dominate. Bowlers played that predominant cricket in first passage of 10 overs. Now from 10th over till 20th, these 11 overs, 1 over already belongs to Sultan Warriors, over number 10. Now the remaining 10 overs, I believe that Sultan Warriors will definitely love to try go for the full Monty. And now it's going to be the testing time for Northern Reds if they manage to stuck to the basics and if they manage to deny them free runs, and then we can call that Northern Reds have done the job. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा की ओर, हालांकि वहां पे लगातार प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पे हादिर अली हमारे साथ बने हुए हैं। फैसल खान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस गेंद को खेला था सीधे, गेंद स्टैंड की ओर आती थी और हमें थोड़ा सा उससे बचना पड़ा, और ऐसे में निश्चित तौर पे थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पर दिक्कत तो हुई। हमारे व्यूवर्स को लेकर क्षमा चाहेंगे। फिलहाल 11वां ओवर इसमें प्रगति पर, और कुल मिलाकर 53 2 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद शौकत अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। नवाबजादा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ओवर की शुरुआत हो चली है और ऐसे में आसिफ अली भट्ट गेंद है इस छोर से वो किस प्रकार से यहां इलाही साहिल और मुरसलीन बाबा भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 53 2 विकेट के नुकसान पर, और आसिफ खान की जोड़ी समय बीच मैदान में आदरेशी सामना करने के तैयार, बाहर सड़क कर वापस स्टंप से बाहर आ गए थे, खेलना चाहते थे, गेंद सीधे स्टंप्स को ले उड़ी। तो इस प्रकार से आदिल रेशी की भी पारी का अंत होता हुआ और संकट और ज्यादा बढ़ती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए तीसरा विकेट मिलता हुआ 53 पे 3। और इस प्रकार से आदिल रेशी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, हालांकि करीब 25-26 गेंदों का सामना किया और इस समय जाते हुए इम्स डार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैक मेहरान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद मलिक माही, जैक मेहरान, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आदिल गुलडॉन इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। जोहर जोलो इस समय क्रीज पर पहुंच चुका है। तो तीसरा विकेट गिरने के बाद 3 दिग्गज बल्लेबाज, सबसे पहले मुनीर भट्ट, उसके बाद आसिफ बशीर और अब आदिल रेशी। तो 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से। 150 में 941 107 हाईएस्ट उच्चतम स्कोर 28.83 उनका एवरेज स्ट्राइक रेट कमाल का। और ऐसे में आज किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे, हालांकि गजब के फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अंतिम समय में, और इन परिस्थितियों में एक परीक्षा होने जा रही है जोहर जोलो की। अरशद इब्ने अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। शारिक अहमद, उबैद इलाही भी इस मुकाबले का धन्यवाद। समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये गेंद जोलो के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, सम्मानजनक रूप से रोकना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, गेंद बल्ले के साथ लगी नहीं और विकेट कीपर के पास पहुंची। कहना चाहिए कि बिल्कुल बल्ले के करीब से निकलती विकेट कीपर के पास। धीमी गति की गेंदबाजी, स्पिन आक्रमण, तिरछे बॉलिंग रनअप के साथ विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए जोहर जोलो सामना करने के लिए तैयार। 53 पे 3 ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद ऑफ मिडल पे आती हुई और एक कदम आगे निकाला जोहर जोलो ने, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ गेंद को सिर्फ बल्ले से टकराने पर दिया, वही पास में लौट की बगैर किसी रन के। शहरी खान, बशारत बेग भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जी हां, बिल्कुल आपकी बात से सहमत। ऑफ स्टंप से बाहर अपने आप को संतुलित जगह बनाई, निकाला पीछे खिलाड़ी, लेकिन शानदार क्षेत्र रक्षण जब तक फील्ड करते तब तक जोहर जोलो ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रणनीति थी, 2 रन जोहर जोलो का खाता खुला, 3 गेंदों से 2, कुल योग 55, 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर इस निर्णायक पहले सेमीफाइनल मुकाबले में BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 के और जेहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता। बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना
ना बोले संघर्षपूर्ण मुकाबला इस बार बीच मैदान में इस बार ऑफ स्टंप से बाहर हालांकि खेलना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद ऑन साइड में गेंद गई। जब तक उसको फील्ड किया जाता है, गेंदबाज कवर्स तक खुद पहुंचे, गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और सजाद अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुल योग 56, 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पूरे हो चुके हैं, 9 ओवर का खेल बचा है और ऐसे में सजाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। रमीज राजा भी इस मुकाबले का आनंद दे रहे हैं। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएमआर को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पापोर, फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बट यासीन हमारे साथ बने हुए हैं। रमीज राजा के साथ दानिश जेहान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। हमीदुल्लाह भट्ट और नवीद पठान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ज़हूर जोलो जो कि एक स्तंभ का काम करेंगे यदि यहाँ से एक आकर्षक पारी खेल पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि आवश्यकता है एक बड़ी पारी की इन परिस्थितियों में, क्योंकि पूरी तरह से समय गेंदबाजी हावी अब तक कर रही है नॉर्दर्न रेड की। जहां तक का बात करें सुल्तान वॉरियर्स की टीम पे, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 56, 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद आसिफ खान 20, 18 गेंदों से, ज़हूर जोलो 3, 4 गेंदों से। मलकी इजाज और आसिफ भट्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है, 7 विकेट हाथ में। ज़हूर जोलो और आसिफ खान की जोड़ी। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद जोलो के लिए, इस बार एक कदम आगे निकाला और गेंद की पिच तक पहुंचे, वही पास में बल्ले से टकराने पर दिया और गेंद को फील्ड कर लिया गया फॉलो थ्रू में बगैर किसी रन के। राजा शबीर हमारे साथ बने हुए हैं। इस गेंद को खेला, उस और खिलाड़ी रन लेना चाहते थे, काफी आगे निकल गए थे। ज़हूर जोलो को बचना होगा इन परिस्थितियों से। हालांकि कॉल जरूर दी थी एक रन के लिए ज़हूर जोलो ने, लेकिन गेंद सीधे क्षेत्ररक्षण के हाथ में, उन्होंने गेंद को उठाया, सीधे थ्रो किया, लेकिन बाल बचे यहाँ पर ज़हूर जोलो। शेख आतर हमारे साथ सजाद अहमद के साथ राजा शबीर, समीर और मलिक माही भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद उनके शरीर पे लगी और कुछ अटपटे अंदाज के साथ खेलना चाहते हैं ज़हूर जोलो, समझ नहीं पाए। गेंद अच्छी खासी टर्न हो रही है और यही समस्या है बल्लेबाजों के साथ, पढ़ नहीं पा रहे हैं गेंदबाजों को। ज़हूर जोलो को यहाँ पर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मीर मुख्तार बहुत बहुत धन्यवाद। हवाई रास्ता, लेकिन इस बार खिलाड़ी की पहुंच से बाहर, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। ज़हूर जोलो के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। सकलैन हामिद भट्ट, बशारत बेग अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुल्तान वॉरियर्स 60 पे पहुंच चुकी है 11.4 के बाद 12वां ओवर प्रगति पर, और सभी आशाएं निगाहें इस समय लगी हुई ज़हूर जोलो पे। तारिक अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। निसार अहमद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद इस बार फ्लाइट के सारे हवाई यात्रा, और गेंद साइड स्क्रीन के बाहर, उसके ऊपर से, साइड स्क्रीन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा छक्का मिलता हुआ यहाँ पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। इस छक्के के साथ ही ज़हूर जोलो ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 9 गेंदों से 13 रन, और इस छक्के के साथ ही 66 पे पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। दानिश जहीन हमारे साथ बने हुए हैं। शाहीन लोन, तनवीर लोन, सोफी शफी और जहांगीर जॉन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 66 पे 3, 11.5। आखिरी गेंद लेकर के तैयार सज्जू भट्ट। 2.5 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं, 25 रन खर्च कर चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर के तैयार ज़हूर जोलो के लिए। ये गेंद फिर फ्लाइटेड, इस बार लेग स्टंप पर मोड़ा, खाली क्षेत्र में गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ, और इस चौके के साथ ही ओवर की भी समाप्ति, और कुल मिलाकर पहली 3 डॉट गेंदें, उसके बाद चौका, छक्का और फिर चौका, तो कुल मिलाकर 2 चौके और 1 छक्का, यानी कि कहना चाहिए 14 रन इस ओवर से आए और 70 पे पहुंचा दिया 12 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। ज़हूर जोलो ने एक बार फिर कमाल की पारी खेलने यहाँ पर हालांकि प्रारंभ की है। काफी लंबा सफर तय करना है, अंत तक रहना होगा, और ज़हूर जोलो जिस आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, उस आक्रामक शैली के अनुरूप आज उनको बल्लेबाजी करनी होगी। रऊफ मालिक, कुरैशी मुदस्सर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर और दानिश जहीन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 70 पे 3, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर का खेल बचा है। पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 का पहला सत्र और पहला सेमीफाइनल मुकाबला। उसके बाद कल संभवतः दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है, जो कि सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर और गनी ऑटोव्हील्स के विरुद्ध होना है। तो ऐसे में एक दिग्गज मुकाबला दोनों सेमीफाइनल्स की अगर बात करें, और आज की यहाँ की विजेता टीम पहली टीम का श्रेय प्राप्त करेगी फाइनल में पहुंचने के लिए। पहली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर फ्लाइटेड गेंद, बल्ला जरूर चलाया था आसिफ खान ने, सफलता मिली नहीं, और
इस गेंद पे वाइड करार दिया गया शेख फहीम द्वारा। 1 रन और 71 पे 3। 13वां ओवर्स में प्रगति पर तनवीर लोन, जहांगीर अहमद, तौहीद वानी भी हमारे साथ, आदिल भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। गेंदबाजी इस समय गेंद को निकाला, लेकिन इस बार खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक मिलती हुई जोर जोलो को, और गेंदबाजी इस छोर से होती हुई सजू आसिफ अली भट्ट, क्षमा कीजिएगा, अब तक का एक सफलता उनको जरूर मिल चुकी है। 1.2 ओवर 4 रन 1 सफलता। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंदरूनी किनारा छोड़ने के बाद विकेट कीपर भी चूके जा रहे हैं पीछे जब तक फील्ड करते हैं, और 1 रन और स्ट्रोक से खुश नहीं है जहूर जोलो। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई। 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता 72 पे 3। ऐसा निसार हमारे साथ बने हुए, शब्बीर अहमद जन्नतुल फिरदौस के साथ, और शमीम लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शब्बीर भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। 73 पे 3। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले को तिरछा किया, पीछे खिलाड़ी, गेंद उनके हाथ से छिटकी, मिस फील्ड का नतीजा। 1 रन दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था वहां पे दूसरा रन कहना चाहिए। 1 रन चुराया, वहां पर क्रिकेट की भाषा में कहीं तो गलत नहीं होगा। 1 रन को 2 रन में परिवर्तित किया। अच्छी दौड़, अच्छी रणनीति और अच्छी मानसिकता के साथ इस समय जहूर जोलो बेहतरीन कहना चाहिए अभ्यास कराते हैं अपने साथी खिलाड़ी आसिफ खान को। 74 पे 3, 12.4। आदिल राजा हमारे साथ बने हुए, तौहीद वानी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 7 रन खर्चे हैं, 1 सफलता जरूर मिली है आसिफ अली भट्ट को। उनके सामने होंगे आसिफ खान 23 पे नाबाद 21 गेंदों से, और जहूर जोलो 18 पे नाबाद 11 गेंदों से। मात्र ऐसे बल्लेबाज जहूर जोलो जिन्होंने गेंद यहां पर अंपायर का निर्णय है कि 5 रन पेनल्टी के रूप में यहां पर सबब काटे गए हैं, दिए गए हैं, क्षमा कीजिएगा। और जी हाँ, और हमारे पास ये सूचना अंपायर से 5 रन पेनल्टी के तौर पर मिलते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। डारा इरफान हमारे साथ, एस शब्बीर के साथ। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, अंतिम समय में हल्के हाथों के साथ कट के अंदाज में खेला, पीछे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 1 रन और खाते में जुड़ता है आदिल भट्ट। गाजी इमू भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवार अली भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। देते रहिए अपना समर्थन सहयोग। इस समय एक संघर्ष, आकर्षक और विश्वसनीय सेमीफाइनल मुकाबला बीच मैदान में। नॉर्दर्न रेड्स की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को आमंत्रित किया, और अब तक करीब करीब हालांकि स्कोरबोर्ड पे 72 दिखाई दे रहा है, और अब जाकर के 12.4 79 पे 3 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। जहूर जोलो 18 11 गेंदों से, आसिफ खान 28 21 गेंदों से। गेंदबाजी का दायित्व आसिफ अली के पास। माजिद बाबा हमारे साथ बने हुए हैं। ये गेंद फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक, नो का इशारा, गेंद सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों का, तो 5 रन एक और जस्ट बोखारा चौका लगता हुआ, और इस 5 के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 पे पहुंच चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर 12.5 के बाद तेज तरार पारी, और अब लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस समय गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बल्लेबाजी प्रहार करते हुए गेंदबाजी के विरुद्ध दानिश जेहान, फयाज अहमद दरलोन यावर भी हमारे साथ बने हुए। इस बार धीमी गति की गेंद, हालांकि टिप्पा खाने के बाद उछाल कहना चाहिए, वहां पर जोर जोलो थोड़ा सा जल्दी खेल गए और पूरी तरह से गेंद को मिस किया। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा हुआ, 13 ओवर की समाप्ति, 85 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री में परिवर्तन अंग्रेजी में, आइए मुनव्वर तनवीर। 85 for 3, and I told my dear beloved viewers, I given you that from 10th hour onwards Sultan Warriors will definitely try to change gears. Then 85 for 3 after 13 overs, and 13 overs done and dusted. 42 balls remaining, 7 overs to be bowled, and 42 balls, 7 wickets in hand, and now 85 isn't bad now. At one stage they were struggling, 10 done, it was 53, and now 32 runs coming up just 3 overs, and it tells us that scoring at the rate of 11, and Ahmed Sajjad and I can't understand what he wants to convey. Ahmed Sajjad Sheikh Umar, and we have Mushtaba Ali Walaikum Salam and Afaq Sheikh over number 14 ball 1. And it's going to be Ashik Retha to bowl and Zolo on strike. It's Asif Khan on strike.
Oh, gone fine, gone for runs, and 4 of those, and gone for just Bukhara down to the final leg boundary for 4. Thank you, Saeed Asadullah. And Fresho begins with the boundary. It's 89, and with each and every run being scored, our bowling side need to compound their agonies, and drifts down the leg side. Little John will tickle on to that one, and ball goes up the turf and down to the boundary, and that 4 brought to you by just Bukhara, and score propelled to 89 for 3. Over number 14 we are in. Ball 1, and the bowler conceding a boundary of ball 1. Now 5 balls remaining in an over, and in this over, this is over number 14, we are in 89 for 3. Zolo on to 23 of 13 balls. Asif Khan is on to 32 of 23 balls. That's another good ball, and Asif Khan unable to guide that, and he was trying to use that angle blade to perfection, beaten all ends of wicketkeeper does well, collecting the ball without any problem and without any hesitation. 89 for 3. Over number 14 we are in. Next ball comes in, and bows shuffling across straight away. Chance of a run out again. Chance gone begging. He was unable to pick it up quickly, and the 2 batters had time in the world to settle for another single. 90 for 3. Over number 14, halfway down in over number 14. Sultan Warriors are now trying to set things on track. Lon Abbas, walaikum salam. On driven, handsome looking shot, and Zolo will get only a single, but he will take that because he middled that to 91 for 3. And whenever a batter tends to middle the ball, it means that he is in with a great intent and positive intent, and he is middling the ball. Oh, inside out, gorgeous, gorgeous, over extra cover, 6 more. What a shot, audacious one, and that's brought to you by just Bukhara. 97, and Asif Khan. Oh, what a shot, excellent shot of that on that occasion of that half tracker. It's 97 for 3. Now Sultan Warriors are taking toll of each and every good and bad ball. Oh, call is for 2. Is he gonna push for the second? And Zolo is in a hurry and is back for the second, and with that brace score moves on to 99 for 3, and 1 share of team 100 is Sultan Warriors after 14 overs. It's 14 done, 99 for 3, 6 overs remaining, and I believe that Sultan Warriors Baramulla are on course for a big score from here on, with 7 wickets in the kitty. Asif Khan with that wonderful 6 and a brace, on to 41 now of 26 balls, and Zolo is on to 24 of 15 balls, and Zolo attacking, and over number 13 now Asif Khan, and making sure that initiative is seized at 14 overs done, 99, and Asif Khan followed Zolo in over number 14 and done in style, that audacious extra cover 6, then followed with a brace on onside. And now Northern Reds are feeling the heat, and it will really test their temperament, and the bowlers need to bowl in the right areas, and it will ask something special from bowlers, and can they produce that that magic of their golden hands. 99 for 3. Inside out was trying Zolo on that occasion, and it was drifting further down our outside. It was turning further outwards, and the batter was unable to get right amount of bat onto that one. Ball goes into the safe hands of wicket keeper. Thank you. It's 99 to be precise, and Asif, and it isn't within our control. It's up to the scorer who's working beyond the boundaries, and it's 99 for 3. And Adil Rishas and Bashir and Munir Bhatt are the batters in the air. Will this be a catch? Will this be a catch? And I think so. Phil is settling for the ball and takes it, and Zolo has to walk back. Wicket number 4 needless, and Zolo has thrown his wicket away, and Sultan Warriors Baramulla losing the big man, the big fish caught in the net, gone on 24 of 16 balls. He has thrown his wicket away. He was a kind of a slugger for Sultan Warriors, and he could really push. He could have really pushed his score beyond 150s of Sultan Warriors, but he has thrown his wicket away at 99 for 4. And there comes
Jahangir Lone walks to the centre after the fall of wicket number 4. Now the responsibility is laid on his shoulders and he has to bat out of his skin. Firdaus Pathan, thank you Sheikh Athar and others. It's 99 for 3. Jack Lone comes out to bat and I think he regained his form last time here at the centre. And is he going to continue where he left last time at the Sam batting turf? And this is the Sam pitch which we used that day. And Lone Taskin Reds in this bowler. And then Tanveer Lone, Naveed Pathan and Saki and Zain Bhatt and Danish Zain and Muzaffar Qasim. And it is Faisal Accuser, Peer Zishan and Tanveer Lone. 99 for 3. Over number 15, bowl number 2. Jahangir Lone, new man out to the centre to face Asif Ali Bhatt. He has picked up a wicket and conceding 18. It's 99 for 4 and the one share of Team 100 is Sultan Warriors Baramulla. But I told my colleague from 10th over and these 4 overs, and I can say that completely dominated by Sultan Warriors. Majid Baba, thank you. Speaks Manava and then Sheikh Athar writes in Arif Kataria and Yavat Tantre and then Shah Rafi. It's 99 for 4. We are in over number 15. Oh, look at that turn. There comes the diamond of the blade of Kohinoor of the Valley. Diamond of the Valley. 6 more into the side screen and that's brought to by Just Bukhara. And are we in for a crackerjack of an innings? Are we in for fireworks? And we'll have to wait and watch. Firework number 1 over longer for 6. Quite convincing. No dance at all. Compact stroke. Oh, next ball worked away nicely down towards the wideish mid-on area. Another run flashed. Hanan comes up. It's Hanan and 6 for the loss of 4 wickets. We are in over number 15 and Jack straight away on to 7 of 2 balls. Next ball, Tasif Khan around the stump and keeps it out towards the cover point. Another run added and sensibly done by Asif Khan, giving strike back to Jahangir Lone. He's on to 7 of 2 balls and today is the occasion. He has to step up and he needs to bat out till the very last ball. Oh, scoops that turn. Gone fine. Gone for runs. We'll have to wait and watch. Will this run down to the boundary? It is teasing. It is annoying on way to fine leg area, but the fielder does well. Wicketkeeper goes across, covering almost 45 yards. And gets to the ball and before he could return the ball, the 2 batters had time in the ball to settle for yet another brace. 109, 110 after 15 overs. And with Jack out to the centre, he's on to 10 of 3 balls into the double figures. And Sultan Warriors are 110 for 4. Nazir, I told you earlier on, this is what they need to understand. Quite understandably, Sultan Warriors now in that sort of a position, they can really push hard and they can take their tally beyond 150. देखिए 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं. आखिरी 5 ओवर का खेल बचा है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए. 110 बना चुकी है उनकी टीम 4 विकेट के नुकसान पर. आसिम बशीर, मुनीर भट्ट, आदिल रेशी और उसके बाद जहूर सोलो, ये 4 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. आसिफ खान 27 गेंदों से 42 और जहांगीर लोन 10-3 गेंदों से. बशीर गुलमर्ग हमारे साथ बने हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. शेख अबरार के साथ बशारत बेग भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं. माजिद बाबा हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पर जहांगीर लोन सामना करने के लिए तैयार रहने और की शुरुआत. पहली गेंद 16वां ओवर प्रगति पर और 110 रन बन चुके हैं. पहली गेंद लेकर के लोन के लिए इस बार फुल टॉस मिडल स्टंप पे आते गेंद को खेला सीधे बल्ले से, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए जहांगीर लोन. रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया. पहली गेंद डॉट और कुल योग अभी भी टिका हुआ 110. 110 4 विकेट के नुकसान पर 15.1 के बाद जहांगीर लोन सामना करने के लिए तैयार. इस ओवर में अगली बार आलिम है गेंदबाज. ये गेंद और इस बार फुल टॉस, लेकिन घुमाया उसको. उस ओवर खिलाड़ी जब तक लगभग लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से गेंद फील्ड होकर के आती. 1 रन पर्याप्त समय था 1 रन लेने का और स्कोरबोर्ड पे नेल्सन 111 4 विकेट के नुकसान पर 15.2 के बाद सज्जू अब्बास, तनवीर लोन और एड्स आरडीबी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं फिदा जावेद के साथ. आलिम चले सामने है
इस समय आसिफ खान राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर अपने कदम झुके वापस अपने बॉलिंग मॉक पे जाते हुए, और निश्चित तौर पे इन परिस्थितियों में अब गियर्स बदलने होंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को, ये देखते हुए कि नॉर्दर्न रेड नाइट्स कमाल की गेंदबाजी के, लेकिन आने वाले इन ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी, वहीं पे गेंदबाजों की कोशिश होगी कि सटीक लाइन रोलिंग के साथ रनों की गति पे अंकुश लगाए। ये गेंद इस बार अंतिम समय में गेंद को देखा, दिशा दे दी उस ओर खिलाड़ी, उनने गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा कर लिया, और एक बार फिर जहांगीर लोन को स्ट्राइक मिलती हुई। 112 पे 4, जहांगीर लोन 11-5 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे 43-28 गेंदों से आसिफ खान। अदरीस खालिक हमारे साथ बने हुए, तनवीर लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। नवीद पठान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और यार मतलबी माही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलिम है गेंदबाज और उनके सामने रहेंगे जहांगीर लोन। ये गेंद और इस बार जहांगीर लोन हवाई यात्रा पे भेजा गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए दूसरा छक्का, जस्ट बुखारा छक्का मिलता हुआ, और जहांगीर लोन के इरादे स्पष्ट हो गए हैं कि किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। आवश्यकता है इस प्रकार के स्ट्रोक की, इस प्रकार की पारी की, और बिल्कुल उसी के अनुरूप इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए इस छक्के के साथ 118 पे 4, 15.4 के बाद 2 गेंदें बची है, 17 पे पहुंच चुके हैं मात्र 6 गेंदों से, और जानते हैं इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करने हैं, और ऐसे ही वे इस समय बीच मैदान में बने हुए। अगली गेंद को फिर क्या करा रहा है, सौखे और छक्का सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का, लोन के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का, और 124 पे पहुंचा दिया, उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ स्कोरबोर्ड। ये है जहांगीर लोन, और डायमंड के नाम से लोकप्रिय इन परिस्थिति में क्या कमाल का प्रदर्शन बीच मैदान में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को इस प्रकार की आवश्यकता थी, और अंततः जहांगीर लोन ने वो कर दिखाया कि उनमें दमखम है, क्षमता है, वो इन परिस्थिति में इस प्रकार की पारी खेलना जानते। इट्स फालिस यार और शेख अबरार भी हमारे साथ बने हुए हैं। 124 4 विकेट के नुकसान पर 15.5, 23 पे पहुंच चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, और बशारत बेग के साथ शेख वसू भी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल अली के साथ इस बार अच्छी गेंद, कलाइयों के सहारे गेंद को बल्ले से बीचों बीच टकराने पर दिया, हालांकि फील्ड हुई, रन कोई बना नहीं, ओवर पूरा हुआ, 16 ओवर की समाप्ति। 124 4 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन और आसिफ खान की जोड़ी बीच मैदान में, लेकिन कमाल का प्रदर्शन, जहांगीर लोन लगातार प्रहार कर रहे हैं। आखिरी के 4 ओवर का खेल बचा है, निर्धारित 24 गेंदें, निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 का पहला सत्र और पहला सेमीफाइनल जेहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से बने रहिए हमारे साथ। कहीं जाइएगा नहीं, एक संघर्षपूर्ण और आकर्षक रोमांचक स्थिति मुकाबले में, क्योंकि आखिरी के 4 ओवर और क्रिकेट के समर्थक जहांगीर लोन से इस प्रकार की पारी चाहते हैं, प्रतीक्षा में है कि उनके शहीद नॉर्थ कश्मीर का डायमंड जिसे कहा जाता है हीरा, वो आज तराशे, और वो आज जिस अपनी पारी को तराशे और तराशी हुई पारी खेले सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। तनवीर लोन, जैन भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। 16 ओवर की समाप्ति, 124 4 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन 23 पे नाबाद, 8 गेंदों से 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं। आसिफ खान 43-28 गेंदों से, और आलम की गेंदबाजी का विश्लेषण, 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 27 रन, 2 सफलताएं उनके खाते में गई है। पारी का 17वां ओवर लेकर के तैयार रमनदीप हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल मागरे भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं नदीम नजीर के साथ। साहिल अली लगातार, गुलजार अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के हाथों के साथ दिशा दे दी, 1 रन पूरा किया, स्ट्राइक जहांगीर लोन को दे दी। आसिफ खान ने अच्छी रन दी थी, क्योंकि आसिफ खान जानते हैं इन परिस्थिति में जहांगीर लोन का बल्ला बोल रहा है, तो ऐसे में उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले इन आखिरी के 4 ओवर्स में, और किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे ये आप बखूबी जानते हैं। 16.1, 125 पे 4 ये गेंद, और बाहर जबरदस्त प्रहार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं हुआ। गेंद छकाते हुए जहांगीर लोन को विकेट कीपर के दस्ताने में, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए। गेंदबाज आसिफ अली इस बार फिर धीमी गति की गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, फिर बल्ला चलाया, थोड़ा सा जल्दी खेल गए, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा जहांगीर लोन को, उसके बाद स्ट्रोक्स देने होंगे। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाज की भी कोशिश होगी कि लगातार अपनी गेंद और लंबाई में थोड़ा सा नियंत्रण करें, और इस बार स्कोप के अंदाज में हवाई रास्ता, खाली क्षेत्र, लेकिन गेंद की गति खुद ब खुद कम होती हुई। 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, तीसरे रन के लिए जा रहे हैं, जब तक गेंद थ्रो होती, विकेट कीपर के पास पहुंचते पर्याप्त समय था 3 रन बटोरने का। 3 रन और जहांगीर लोन को मिलते हैं। उनका व्यक्तिगत योग 26-11 गेंदों से, कुल योग 128 4 विकेट के नुकसान पर 16.4। साहिल अली लगातार, इमरान सोफी भी आदिल के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शेख अतहर भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिरदौस मीर वसीम, और इस बार कदमों का इस्तेमाल आसिफ खान ने गेंद की पिच तक पहुंचे, निकाला उसको, 1 रन पूरा कर रहे हैं, जब तक उस फील्ड होती दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में, 130 4 विकेट के नुकसान पर 16.5।
28 से 43 और 8 से 23, ये अब तक का लेखा जोखा आसिफ खान और जहांगीर लोन का। क्रिकेट टाइटन्स हमारे साथ बने हुए हैं। यूनिस सोफी भी इस मुकाबले का आनंद लेने शेख विसु के लिए इस बार आसिफ खान के लिए बैक पर जाकर के स्टोकर जरूर खेला लेकिन ताकत नहीं दे पाए। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से जब तक फील्ड होती पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बटोरने का। 1 रन से संतुष्ट ओवर हुआ, पूरा 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं और कुल योग 131 पे 4, 47-31 गेंदों से आसिफ खान, जहांगीर लोन 26-11 गेंदों से और जहूर जोलो ने इससे पूर्व क्योंकि आउट होकर पवेलियन लौट के 24 रनों का योगदान दिया था। आखिरी के 3 ओवर निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला और दूसरा सेमीफाइनल जो कि कल निश्चित तौर पर तय होना है, जो कि सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर और गनी ऑटो व्हील्स के विरुद्ध होना है। 3 ओवर का खेल बचा है। सोफिया जावेद हमारे साथ बने हुए हैं और मीर तनवीर लोन, वानिया फीदी और शेख जहांगीर के साथ किटकैट मूसी और वसीम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 17 ओवर की समाप्ति 131 पे 4 और 150 के आसपास, बल्कि 150 से उच्चतम का स्कोर देखना चाहेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, हालांकि तिरछे बल्ले के साथ निकाला था उसको। 1 रन के लिए 1 रन और आसिफ खान के खाते में और नवाब कश्मीरी के साथ साहिल अली हमारे साथ बने हुए हैं। तनवीर लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ लगातार प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 132 4 विकेट के नुकसान पर 17.1, 18वां ओवर प्रगति पर आशिक रह रहे हैं गेंदबाज। सामने है जहांगीर लोन, ये गेंद और प्रहार किया और गेंद पूरे तरह से छकाते हुए बिल्स को ले उड़ी। जहांगीर लोन की पारी का समापन 5वें विकेट के रूप में 132 पे 5, 17.2 के बाद आसिफ खान नाबाद, लेकिन जहांगीर लोन आउट होकर पवेलियन लौटते हैं। प्रहार कर रहे थे लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। एक सपाट गेंद सीधी लेग स्टंप पर आती हुई बल्ला जरूर चलाया, गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ, गेंद छकाते हुए सीधे स्टंप्स पे। तो 5वां विकेट जहांगीर लोन का एक कैमियो जिसे क्रिकेट की भाषा में कहें वो आउट होकर, लेकिन एक रोमांचक स्थिति पहुंचा दी थी मुकाबले में। सुल्तान वॉरियर्स 132 पे 5, क्या 150 के आसपास पहुंच पाएगी अथवा नहीं। नए बल्लेबाज करीज पर पहुंच चुके हैं। आसिफ खान 48 पे नाबाद 32 गेंदों से कमाल का प्रदर्शन। तनवीर लोन हमारे साथ बने हुए हैं। तौसीफ कश्मीरी, साहिल अली और आफाक कश्मीरी भी नवीद पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। निर्णायक पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दर्शकों की अच्छी खासी संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं। मुकाबले का आनंद ले रहे हैं बशारत बेग 170-180 उनके प्रेडिक्शन है। तनवीर लोन 154 और धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी प्रेडिक्शन हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सुझाव के जरिए कि क्या लक्ष्य देगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम निर्धारित 20 ओवर में नॉर्दर्न रेड की टीम को। तौसीफ अहमद, अरहान भट्ट, लोन अब्बास, धन्यवाद। ओवैस नसीर भी नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। हर बार पहले गेंद को स्वागत वहां पर जरूर किया था लेकिन खिलाड़ी है तैनात, गेंद एक टिप्पा खाने के बाद उनके हाथ में पहुंची लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 133 पे 5, 17.3 के बाद आसिफ खान सामना करने के लिए तैयार। आशिक रथर का शेख अतर हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक, हवाई रास्ता, खिलाड़ी और लेकिन बनेंगे दर्शक। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए आसिफ खान के बल्ले से निकलता हुआ ये दर्शनीय स्ट्रोक जस्ट बुखारा छक्का मिलता हुआ 138 पे पहुंचा दिया 5 विकेट के नुकसान पर 17.4 के बाद। फैसल डार और आसिफ खान की जोड़ी समय बीच मैदान में है। फैसल डार ने 1 रन बनाया है। आशिक सामने है, आसिफ खान है सामने है। हल्के हाथों के साथ लेग स्टंप पर आती हुई गेंद खाली क्षेत्र में काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं और निश्चित तौर पे स्टंप्स पे वहां पर थ्रो स्टिक लगता खतरे में पड़ सकते थे, बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। तीसरा रन भी पूरा कर लिया। 3 रन और 141। मोहम्मद इकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद। शादी बारिक पुलवामा से अवान रफाकत और अवान जाहिद के साथ तनवीर लोन डार, नईम मंसूर अहमद 170, मुस्तफा अली 159, बिलाल लोन 160। तनवीर लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 17.4, 141। जान मोहम्मद भी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। गेंदबाजी आसिफ रथर के पास 28 रन देकर के 1 सफलता। इस बार फिर हवाई यात्रा लेकिन गेंद काफी ऊपर उठी है, हवा में नीचे खिलाड़ी संतुलित हो रहे हैं। कैच उनके हाथ में, चलिए छोटा विकेट भी गिरता हुआ और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 142 पे 6, 18 ओवर समाप्त। तो आखिरी के 2 ओवर बचे हैं। आसिफ खान 57-34 गेंदों से, फैसलदार 1 यानी कि छठे विकेट के रूप में और संभवतः फैसल
डार आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 1 रन का मात्र योगदान दिया मलिक शब्बीर, धन्यवाद अरहान और साहिल मीर, बहुत बहुत धन्यवाद। हारून जहूर, एजाज मजीद के साथ नवाबजादा भी बट इम्तियाज। अरबाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। सुल्तान वॉरियर्स 142 पे 6 विकेट गंवा दिए हैं। निश्चित तौर पे कमाल की गेंदबाजी। अजहर सुल्तान भट्ट हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, अपना प्यार और इजाजत देने के लिए। नवीद पठान, तनवीर लोन के साथ तौसीफ कश्मीरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोमिन अल्ताफ 160 और सईद अयान, राथर सुहेल 165। ये हमारे चहते व्यूअर्स का सुझाव, उनकी प्रेडिक्शन के क्या लक्ष्य होगा। 57 रन आसिफ खान ने 34 गेंदों से 2 चौके और 2 छक्के, 167.65 उनका स्ट्राइक रेट। और इस समय नाबाद है 57 पे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अल्ताफ चौधरी, आजम भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमीदुल्लाह भट्ट 176, मलिक इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद। तौसीफ, ओवैस नसीर, और ये गेंद लेग स्टंप पर उठाया, पीछे खिलाड़ी पहुंचेंगे नहीं, एक टिप्पा सीमा रेखा से बाहर। सबब ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर जा लगी है। 6 रनों के लिए जस्ट बुखारा छक्का आता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 148 सबब थे। जी हां, 148 6 विकेट के नुकसान पर 18 के बाद फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर लपेटा, पीछे खिलाड़ी कैच कर लिया, 7वां विकेट गिरता हुआ 148 पे 7 बनवर 18.2 के बाद। 148 for 7 now, and Asif Khan has to walk back, but richly deserving 63 to him. Wonderful innings, nicely composed and compact innings, and well paced and well deserved 63 innings. That inning comes to an end with that catch at long on area, but he has taken his side to some sort of respectability. And as he 148 with almost 2 overs to come, and I've given you at halfway stage of innings that Sultan Warriors can really possess a lot of threat to their opponent side, and they can really take them to the cleaners. Yeah, of course they lost 7 wickets. Now you can see that 140 is on the board with 10 balls remaining, and Zaida walks to the center. Now they can really think of getting to 170 with remaining 10 balls and 3 wickets still in hand. Now credit must be given to the bowling side. They're just still trying to pull it back, but it is too late to be precise. They allowed the opponent side, Sultan Warriors Baramulla, to seize the initiative and to run away with the scorecard from over number 10 till onwards. And till now, it's been Sultans dominating the show. 148 for 6. And won't be easy for the team which will bat second. If they get 170, then they will have to bat out of the skins to get those 170 runs from their allotted overs. But at this crucial juncture, Zaid and Imtiaz should try to take their side to 170s. Oh! First ball sweep! Can you believe, coming out, swinging straight away, first ball, and swept hard. And that just Bukhara taking score to 152. And the 150 comes up, third 50 of an innings. Now it's Imtiaz lefty, can you believe? What kind of change made by Sultans today? Oh, what a shot! Gorgeous! Excellent! Sumptuous, audacious one, and into the wideish extra cover boundary for 4. Another Just Bukhara coming off below Rivers Way, and that for brought to by Just Bukhara, and for number 2 on the trot, 156, and is here, all guns blazing. Zaida walked in, and with 2 wonderful shots onto 8, and his team score propelled to 156 for 7. We are in over number 19. Over number 19. This is penultimate but 1. Oh, that one. Oh, in the gap. Will he be able to split the 2 fielder? No, Dawson. Just a single. And Imtiaz lefty will have to contend with that single on the other side. And it's 19 done. 157 for 7. Eventful over in terms of wickets, in terms of runs. And it balanced things again. Bowler balancing. Getting wicket, then gifting away 2 boundaries, 2 back-to-back fours, and Zangir Butt writes in, Imtiaz lefty reached late to the ground, that's why he's batting at number, and thank you Zangir Butt for letting us know, but 157 for 7, and still he sent at number 7, and he would have been then promoted up the order, no doubt, but that might be the reason, Nazir, sending him too late, and it's 157 for 7, but nowadays Captain Adil Rishi himself tends to bat first, and he tends to bat as an opener,
and he wants to seize that initiative because in power play you can normally break free, but today it was a different day because of that moisture. It's 157 for 7. Last over remains to be bowled. 6 legitimate balls are going to come. Mohammad Iqbal writes in, love your efforts, lovely commentary. Forget international ones nowadays due to your great efforts once again. Thanks for promoting the game. Jksportstime, Nazir Sobander. Thank you Mohammad Iqbal for your love and support. It means quite a lot. It means something special for us, and this is the killer message for leg pullers. Understand the need of an hour and understand that still people are there who acknowledge your work. Thank you. It is Faisal and Mohsin Manzoor. 157 for 7. Final over comes. Final over begins here at the center of Jalam Stadium, and we will have to wait and watch. It's going to be Wasim to bowl that last over. He bowled 3 prior to this one, conceding just 13. Economic first spell. Now brought on to bowl that, and last over of an innings, and that's going to be the final spell for the final time he's going to operate. 157 for 7. Ball 1, change of pace, still checking, but that's gone all the way along on for 6 more. Brought to you by Jksportstime. What a shot, middling that full toss, change of pace, but look at this man, stays put and puts that one in style. What a shot, can you believe? And without trying extra bit of action, without trying extension of arms, still staying put and lifting that one up. He settled it for the ball. Oh, next one, full toss, and over backward a point. 6 more, back-to-back sixes. Oh, can you believe? Another Jksportstime coming out of his blade, this time over backward a point, back-to-back sixes. Nazir 2 full toss deliveries and 2 are put away in style, and courtesy this man Zaida lifting the morale. 169 for 7, and can you believe Nazir, now Sultans have enough on the board to me. 169 पे 7, 19.2. जाहिदार सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद और बाहर घुमाना चाहते थे, हालांकि थोड़ी सिरे पे लगने के बाद पैड पे लगी, विकेट कीपर उस ओर जा रहे हैं, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। तो 3 गेंदों से 13 रन बटोर लिए हैं। जाहिदार ने कमाल का प्रदर्शन, आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 170 पे 7, 19.3 के बाद बशरत बेग धन्यवाद। जाकिर पाठ भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी को खाता खोलना है, 0 पे ऐसे में सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी वसीम के पास 3.3 ओवर, कोई मेडा नहीं, 26 रन, कोई सफलता नहीं। चौथी गेंद लेकर के तैयार। 19.3, 170 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। 3 गेंदें बची हैं। पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला पहली पारी समाप्त नहीं की और आखिरी 3 गेंदें बची। चौथी गेंद लेकर के तैयार वसीम लेफ्टी के लिए, और इस बार लेफ्टी ने ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को निकाला सीधे खिलाड़ी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्ट्राइक मिलती हुई जाहिदार को 171 पे 7, 2 गेंदें बची हैं। पहली पारी के पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। नॉर्दर्न रेड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआती 10 ओवर उनके नाम और आखिर के 10 ओवर कहना चाहिए सुल्तान वॉरियर्स ने शानदार वापसी की है। जाहिदार आखिरी 2 गेंदें बची है। 171 4 विकेट के नुकसान पर निसार लोन और मोहम्मद इकबाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। जाहिद भाई 7 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार वसीम का। 2 गेंदें बची हैं। 171 चले वसीम। जाहिदार के लिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद सीधे हाथ में, कैच छोटा, 1 रन पूरा कर रहे हैं और एक और कैच वहां पर, लेकिन इस वक्त जाहिदार को 1 रन और खाते में मिलता हुआ और कुछ वक्त पहुंचाया। 172 पे 7 पहली बारी की आखिरी गेंद, यानी कि निर्धारित 20 ओवर का कोटा, 20वां ओवर, आखिरी गेंद लेकर के तैयार वसीम। सामने होंगे इम्तियाज लेफ्टी। 172 पे 7, मुस्तफा अली हम सफर और सैयद नसीम भी बने हुए हैं। कदमों का इस्तेमाल, लेफ्टी थोड़ा गैप का इस्तेमाल, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट वखारा चौका। तो ओवर समाप्त किया। 176 20 ओवर की समाप्ति के बाद 177 रनों का विजयी लक्ष्य। और जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी हम आपके पास लौटेंगे। तब तक का मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।